I talked to a monk once. He came to see me. He had a great many followers. ओके सो राइट ऑफ द बैट कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ यहाँ पे चल कर है ये इंटरव्यू दे रहा है किसी बंदे को और ये बता रहा है एक स्टोरी अपनी जब ये एक मॉन्क से मिला था अब ये कौन मॉन्क का उसका इसने नाम नहीं लिया है बट लेट्स हियर हिम आउट And he was very well known. He's still very well known. And he said, I have taught my disciples. He was very proud of having thousands of disciples. यू नो कि ये उसका मजाक उड़ाने वाला है इस मॉन्क का क्योंकि अभी इसने बोल दिया ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ और हमें पता है कि एज अ मॉन्क इफ यू क्लेम टू बी अ मॉन्क इफ यू क्लेम टू बी एनलाइटेंड यू कैन नॉट बी प्राउड यू कैन नॉट बी ईगोटिस्टिक राइट दीज आर सर्टेन क्वालिटीज जो एक मॉन्क में तो हो ही नहीं सकती अब बस उसका रोस्टिंग शुरू होने वाली है सो हैंग इन देयर ओके And it seemed rather absurd for a guru to be proud. Guru to be proud, that's quite absurd. So मतलब यहाँ पे ये भी समझने की एक कोशिश करना and that's a great lesson that you can get is देख ये बंदा कृष्णा मूर्ति he is definitely disagreeing with this monk, right? He is not in good terms with this monk. बट पूरे वीडियो में ही इज जस्ट गिगलिंग ही इज नॉट फ्राउनिंग एक भी बार ये गुस्से में नहीं आएगा एक भी बार ये कोई गाली नहीं देगा उस मॉन्क को बिल्कुल भी डिसरिगार्ड नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा उससे डिसअग्री करेगा लाइक अ बॉस लाइक थ्रू आउट ये बस हंसता हुआ स्माइल करता हुआ अपने इसी नेचर के साथ पूरा बताएगा उस मॉन्क के बारे में वो क्या था कौन था कैसा था He was a success. He was a success. And success means Cadillacs or Rolls Royces, European and American followers. You follow all that circus that goes on. Yeah, and his gimmick works. Gimmick works. There you go. मतलब उसने जैसे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है एक मॉन्क के लिए सक्सेस की डेफिनेशन कैन नॉट बी a lot of Cadillacs, a lot of Rolls Royce, a lot of cars, a lot of followers like American followers, European followers. और right away ये उसको बता भी रहा है कि भाई this is not success, this is circus. This is a circus of success. This is a gimmick, and they are having a good time. Obviously, they're laughing. And he was saying, I have arrived because I have learned to control my senses, my body, my thoughts, my desires. I have held them. He went on about it for some length. I said, sir, what at the end of it? You've controlled. Where are you at the end of it? He said, what are you asking? I have arrived. Arrived at what? Wow. So this monk is definitely very proud of the fact कि उसने अपने सेंसेस पर कंट्रोल पा लिया है अपेरेंटली ये बता रहा था जय कृष्णा मूर्ति को वो मॉन्क सारे सेंसेस अब मेरी मुट्ठी में है एंड आई हैव अराइव्ड like I have made it. Krishnamurti questions that monk, you have made what? Where have you arrived? What have you done? और एक ऐसे मॉन्क से जो कि apparently इतना सक्सेसफुल हो कि उसके पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हो ये क्वेश्चन करना कि what have you done? What have you achieved? Might kick off a lot of nerves. I have achieved enlightenment. Just listen to it. So follow the sequence of a human being who has a direction which he calls truth, and to achieve that there are the traditional steps, the traditional path, the traditional approach, and he has done it, and therefore he says, I have got it. I've got it in my hand. I know what it is. I said, all right, sir. He began to be very excited about it because he wanted to convince me. बता रहा है उसके बारे में कि जो मॉन्क है उसको ये मुझे बहुत सही बात लगी कृष्णा मूर्ति की कि ही इज डीकंस्ट्रक्टिंग द होल पर्सनैलिटी ऑफ दिस मॉन्क बाय द मीन्स ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग कैसे ये उससे मिला क्या इससे बात हुई उसके थ्रू इसने पूरी पर्सनैलिटी डीकंस्ट्रक्ट कर दी इस मॉन्क की दिस मॉन्क इन हिज हेड थॉट बिलीव्ड कि ही रीच्ड एनलाइटनमेंट और जय कृष्णा मूर्ति इज जस्ट लाइक नॉट कीपिंग अवे फ्रॉम स्कूल ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ऑफ गेनिंग सक्सेस कि ट्रेडिशनली स्पीकिंग अगर मैं किसी को बोलता हूँ सक्सेसफुल तो उसका मतलब यही है ना उसके पास बहुत सारा पैसा है गाड़ी है घर है और इसके केस में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं that's not success for J. Krishnamurti. Apparently that is what it seems like. Okay, we'll get to know further ahead about being a big man and all that. I said just I sat very quietly and listened to him, and he quieted down. And then I said to him,
We were sitting by the sea, and I said, "You see that sea, sir?" He said, "Of course." "Can you hold that water in your hand?" When you hold that water in your hand, it's no longer the sea. Right. J. Krishnamurti, man, this guy is a beast. He's a beast. So basically ये मॉन्क को सीधा बस यही बोलता है कि अच्छा तू कह रहा है कि तूने सब कुछ अपनी मुट्ठी में ले लिया है, ठीक है, एंड हेंस तू बस स्टार है. उसको सिर्फ इतनी चीज बोलता है, दे वर सिटिंग बाय द ओशियन, दे वर सिटिंग बाय द सी, और कृष्णमूर्ति उसको बोलता है कि क्या तू अपनी मुट्ठी में वो सी ले सकता है? जैसे ही तू उसको अपनी मुट्ठी में लेगा, इट्स नो लॉन्गर द सी because the water will drop out and blah blah blah, right? He's basically mocking the monk, और जो उसकी फाउंडेशन है उस monk की पर्सनैलिटी की, उसी को ये डिएबिलिटेट कर रहा है. उसको ऐसे ऐसे सवाल बोल के, ऐसे ऐसे सवाल पूछ के कि क्या कर लिया तूने, कहाँ तू पहुंच गया, ओके हाथ में ले ले सी को, यू नो. ये तरीका है रोस्ट करने का. इफ यू रियली एवर वांट टू रोस्ट समवन दैट यू डिसएग्री विद, दिस इज द वे. और देखते हैं. He couldn't make out. I said, "All right." And the wind was blowing from the north, slight breeze, cool. And he said, "There's a breeze in there. Can you hold all that?" सेम इसने चीज उसकी ब्रीज के साथ भी बोली कि अच्छा सी को पकड़ सकता है तू, हवा को पकड़ सकता है जो ब्रीज निकल रही है वहां से. तो वही सेम तरीके की एनालॉजी. No. Can you hold the earth? No. So what are you holding? Words? आहा! So he's like, अच्छा तू सी को नहीं पकड़ सकता, तू ब्रीज को नहीं पकड़ सकता, तो तू पकड़ क्या रहा है? चंद शब्द कि मैंने ये कंट्रोल कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, मैंने ये उखाड़ लिया जिंदगी में. दीज आर जस्ट वर्ड्स. तूने असली में कुछ नहीं उखाड़ा है. यू कैन नेवर होल्ड ऑन टू एनीथिंग बिकॉज हर एक चीज की अपनी फेटेलिटी, राइट? कमाल है. You know, sir, he was so angry. He said, "I won't listen to you anymore. You're an evil man." And walked out. क्यों नहीं? ऑब्वियसली वो मॉन्क बता रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, एंड देन ही वॉकड आउट. इसने इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू, ये 3-3.5 मिनट का वीडियो है, इसने 3-3.5 मिनट में उस मॉन्क को पूरा डिबिलिटेट कर दिया. कैसे इसने रोस्ट किया. एक मॉन्क होने की सबसे बड़ी क्वालिटीज ही है ना कि वो शेड कर देगा अपनी काम की भावना, अपना लोभ, क्रोध, माया, मटेरियलिज्म, ये सब शेड कर देगा. बट पहले तो उसने शुरू जब ये बात करी बताया कि ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो इतना सक्सेसफुल मॉन्क है, इतना सक्सेसफुल गुरु है. तो प्राउड नहीं हो सकता. एक पहुंचा हुआ गुरु, एक पहुंचा हुआ जो महान एनलाइटेंड इंसान होएगा, वो कभी भी प्राउड नहीं हो सकता, ईगोइस्टिक नहीं हो सकता. ठीक है, दीज आर द क्वालिटीज यू हैव टू शेड इन ऑर्डर टू बिकम एनलाइटेंड. और सेकेंडली, आखिर में वो गुस्से में आ गया वो मॉन्क और उठ के चला गया. गुस्सा, क्रोध भी नहीं हो सकता गुरु में. अगर तुम्हें सीरियसली एक एनलाइटेंड गुरु की पहचान कर रही है, उसको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा और वो कभी भी प्राउड नहीं होएगा, कभी भी ईगो नहीं होगी. और ये दोनों चीजें अपेरेंटली इस मॉन्क में थी, और इसी वजह से बहुत अच्छे तरीके से जे कृष्णमूर्ति ने इसको रोस्ट किया है. दिस वाज फन, मैन. दिस गाय, आई थिंक इफ एनीथिंग वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ रोस्टिंग. स्टेइंग कूल, स्टेइंग काम थ्रू आउट व्हाइल यू रोस्ट. सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं